गुड इव्हनिंग सर. अरे गुड इव्हनिंग ओंकार, गुड इव्हनिंग. येतोय आवाज? यस सर. चल. स्क्रीन शेअर करतोय. I hope my screen is visible to you. यस सर. Okay, yesterday we have started with the linked list, right? Linked list आपण बघितलं how to create what is linked list. Okay, what is the C code of the linked list, how to create the linked list, how to add node in the linked list, right? How to display the linked list. That is what we have seen yesterday. Yes sir. Yeah. So एक टॉपिक था कि how to add the linked list at the end of the node, right? That topic was left. So we'll see that topic, and then we'll see there are two more problems which were asked in your gate exam, that we'll see, and then we switch our topic from linked list to stack. Yes. Yes sir. Yes. So this is the topic, linked list and the stack. Okay, this is how we have started with this linked list. Two ways are there to maintain the list in the memory, that is array and the linked list. Then we have seen the types of linked list. What is the linked list that we have seen? It is made up of two parts, data and the link. This is how the node is there, and we know that how the single linked list can be created with the help of this four data, how this data is present in the node. Then we have seen the C programs to create a node, right? And then we have connected this two nodes with the earlier link, the node that is already been created, right? So this head link वाला भी हम लोगों ने फंडा देख लिया था. So this is how to print the data. मतलब जो linked list already created था उसका data कैसा print करना, that is also we have seen, right? So this is the part that I would like to take right now. Key insertion a node at the end of the linked list. Getting it? Yes sir. Right. So what we do here, यहाँ पे जब भी आप if you read this topic now, so what we are doing कि like this, we need two header file like stdio.h and stdlib.h. क्योंकि हम लोग malloc function use कर रहे हैं इसलिए standard library.h ये file include करना जरूरी है. And then I want you should also include this conio.h, because we need to see the output as well, right? So console input output.h मतलब get ch और clr scr ये वाले जो function हम लोग use करेंगे, for that we require that file, right? So struct node, that we need to declare a structured, and वो node में क्या क्या रहेगा, that we are going to see which data will be there. एक ही डेटा मेंटेन करना है तो एक ही डेटा रहेगा, मल्टीपल डेटा वी कैन मेंटेन इन द नोड. और एक तो लिंक पार्ट तो रहेगा, देयर वुड बी वन पॉइंटर व्हिच इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. गेटिंग इट? Yes sir. Okay. Now
एक आता मला यू कैन टेल मी, अगर ये मेरा डबली लिंक लिस्ट होता, स्ट्रक्ट नोड कैसा होता बताओ तो, नोड का स्ट्रक्चर कैसा होता इफ इट इज अ डबली लिंक लिस्ट? है ना, डबली लिंक लिस्ट जर असतं तर और काय एक करावं लागलं पॉइंटर असतं? होता. बस एक पॉइंटर एक्स्ट्रा ऍड करावं लागेल. काय करावं लागेल? स्ट्रक्ट नोड जसंच्या तसं. एंड हियर आई विल से दैट कि एक मेरा स्ट्रक्ट नोड एक पॉइंटर रहेगा प्रीवियस नाम का, जो कि प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा, राइट. देन एक बीच में क्या रहेगा मेरा डेटा. सपोज एक डेटा है तो एक ही डेटा रखो. यस. लगा. ओके फाइन. एंड दिस नेक्स्ट वाला एज इट इज रहेगा स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट. आता लिंक करायचं की नेक्स्ट करायचं इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट. तो ये नोड कैसा क्रिएट हो जाएगा? दिस विल बी द नोड व्हिच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. ये वाला लिंक, ये वाला लिंक, दिस इज माय प्रीवियस लिंक, दिस इज माय नेक्स्ट लिंक, एंड हियर इट इज माय डेटा. यस और नो? यस सर. So this is how this node can be created. So simple. Once you have understood the single linked list, you can go for doubly linked list. You can go for circular linked list, right? Yes or no? यस सर. Chalo. So what I'll do now, I'll erase this data so that now we'll stick to this one. So what we want we should insert the node at the end of the linked list. मतलब किस तरीके से हमको लिंक लिस्ट रेडी करना है या फिर क्रिएट करना है कि एक नोड आते जाएगा. सपोज दिस वुड बी द फर्स्ट नोड. ये एक पहला नोड बनाएंगे, फिर जब भी दूसरा नोड नया आएगा उसको हम लोग कहाँ पे ऐड करेंगे? एट द एंड ऑफ द लिस्ट, है ना, राइट. सपोज दिस इज माय न्यू नोड, तो दिस वुड बी क्रिएटेड विद द अर्लियर नोड, राइट, एट द एंड ऑफ दिस नोड. इसके बाद इस तरीके से ये लिंक क्रिएट होगा. यस और नो? यस सर. जब भी और कोई नया आया तो इसके बाद ऐड करेंगे. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट द नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट. तो फॉर एग्जांपल यू जस्ट अज्यूम कि नाउ दिस इज द फर्स्ट pointer that we have created, that the name of this pointer is head, and we have allocated a memory for this node. So एक नोड को जितनी मेमोरी लगती वो allocate होगी और उसका एड्रेस किस में आ गया? हेड में. Getting it? Or head is a pointer which is pointing to that node, right? For example, head का कंटेंट अगर 1000, मतलब अगर इस नोड के लिए अगर मेमोरी allocate हुई है 1000 से, so that address will be loaded into the head. यस सर. Then what we have done, we have created head data. मतलब this the first part is my data part. तो head data में क्या ऐड हो गया? 45. 45. और अभी कोई नया नोड आया ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो ये पार्ट क्या है मेरा? नल. यस सर. Understood? Then what I'll do, I have one more pointer. The name of this pointer is PTR. और PTR को मैंने असाइन किया है हेड. मतलब हेड का जो भी कंटेंट होगा 1000 तो PTR में आ गया. PTR में भी 1000 है, इसका मतलब PTR is also pointing to this node. यस सर. Getting it? Now what I am doing, I am calling one function add at the end. क्या फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम? Add at the end. उसमें क्या क्या पास कर रहे हैं? We are passing this PTR, right, and the data that we need to add in the new node. Getting it? यस सर. तो जैसे ही मैंने PTR पास किया तो मैंने add at the end, पहली बार में क्या आ जाएगा? This PTR is equal to, ये फंक्शन कॉल होगा add at end नाम का एक फंक्शन है जिसमें क्या क्या पास कर रहे हैं हम लोग? द एड्रेस, दैट इज PTR का एड्रेस इज व्हाट? 1000, और द डेटा दैट वुड बी द कंटेंट ऑफ डेटा पार्ट ऑफ द न्यू नोड, राइट? यस सर. राइट. और वो जो भी रिटर्न करेगा वो रिटर्न कहाँ पे
स्टोर्ड होगा पीटीआर में, राइट? दैट मीन्स व्हाट, ऐड एट द एंड नाम का जो फंक्शन है वो एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हम लोग किस में ले रहे हैं उसको, पीटीआर में, और पीटीआर क्या है, पॉइंटर, पॉइंटर क्या लेगा हमेशा, एड्रेस। एड्रेस। गेटिंग इट? मतलब ऐड एट द एंड क्या रिटर्न करेगा, एड्रेस। अब वो किसका एड्रेस रहेगा, क्या एड्रेस रहेगा, दैट वी विल सी व्हेनेवर वी सी द कोड ऑफ ऐड एट द एंड फंक्शन। क्लियर है? यस सर। तो पहले हम जाते हैं ये वाला, नाउ वी आर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट, राइट? तो ये स्टेटमेंट में मुझे पता चला कि मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है ऐड एट एंड वन। तो आई विल गो टू दिस ऐड एट द एंड, मतलब इसने ये बताया कि जैसे ये क्रिएट हुआ था तो इस तरीके का एक नोड बन गया, हेड में 1000 आ गया, राइट? नाउ आई विल गो टू दिस ऐड एट द एंड नाम का फंक्शन, अंडरस्टूड? जिसमें मैंने पीटीआर और जो डेटा है वो पास किया था। पीटीआर मतलब क्या, मैंने एड्रेस पास किया था 1000 और डेटा में क्या था 98, so that they will be copied here in this fashion. यस सर। So this ptr is different and that ptr is different. Getting it? ये मेरा फॉर्मल पैरामीटर है, यस सर। ठीक है? अब मैंने क्या किया, एक टेम्प नाम का पॉइंटर यूज किया, टेम्प नाम का, राइट? उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट की, कितनी मेमोरी, जितनी एक नोड को स्टोर करने के लिए मेमोरी लगती उतनी मेमोरी एलोकेट हो गई। सपोज उस मेमोरी का एड्रेस 2000 है, तो वो वाला एड्रेस असाइन किसको हो गया, इस पॉइंटर को। पॉइंटर में क्या आ गया, ये एड्रेस 2000। इसका मतलब क्या, टेम्प इज अ पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू दिस मेमोरी लोकेशन 2000। यस? यस सर। तो यहाँ पे आ गया। फिर टेम्प डेटा, मतलब उस डेटा में मैंने क्या रखा, ये वाला डेटा। ये वाला डेटा मतलब कौन सा डेटा, ये दिस वन। सो वो डेटा का कंटेंट क्या था 98, तो 98 वहां पे आ गया। यस सर। डन? और इस टेम्प का जो लिंक पार्ट है उसको मैंने बनाया नल। यस सर। और व्हाट आई हैव डन हियर, पीटीआर का लिंक। तो पीटीआर का लिंक बोले तो किसका लिंक, ये 1000 वाले का लिंक। तो मतलब ऑलरेडी आई एम हैविंग वन नोड, राइट? द कंटेंट ऑफ दैट नोड वाज 45 और यहाँ पे क्या वैल्यू थी, नल, जो मैंने पहले बनाया था। यस और नो? और इसको कौन यस कौन सर। पॉइंट कर रहा था, इसको हेड भी पॉइंट कर रहा है और इसको पीटीआर भी पॉइंट कर रहा है। गेटिंग इट? यस सर। दिस इज ऑलरेडी क्रिएटेड। अब मुझे ये, इसके बाद ये जो न्यूली क्रिएटेड नोड है इसको कनेक्ट करना है, इसको लिंक करना है, सो दैट मैं जो लिस्ट बनेगी वो लिंक्ड लिस्ट रहेगी। सो व्हाट आई विल डू, इसके बाद ये वाला नोड आना चाहिए, तो क्या होगा, इसका जो लिंक पार्ट है, किसका लिंक पार्ट, पीटीआर का लिंक। सो पीटीआर के लिंक में मुझे क्या रखना पड़ेगा, 2000। टेम। तो 2000 किस में है, टेम में है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 2000। सो मैंने क्या किया, पीटीआर लिंक इज इक्वल टू टेम। तो पीटीआर लिंक इज इक्वल टू टेम किया तो नल हट जाएगा, 2000 आ गया। जैसे ही यहाँ पे 2000 आ गया, जो न्यूली क्रिएटेड नोड है वो इस तरीके से क्या हो यस सर। जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और देखो ये क्या रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, टेम। टेम्प। टेम्प रिटर्न कर रहा है, मतलब क्या रिटर्न कर रहा है, एड्रेस। कौन सा एड्रेस, 2000। क्या रिटर्न कर रहा है ये, 2000। सो सी दैट, पहले वाले में हम लोगों ने देखा था, तो इसने क्या क्या रिटर्न किया, ऐड एट द एंड ने क्या रिटर्न किया बताओ, टेम्प। और 2000। टेम्प में क्या था 2000, तो 2000 किसको असाइन हुआ, इस पीटीआर पीटीआर। को, राइट? तो यहाँ पे जो पीटीआर में 1000 था, अभी पीटीआर में क्या आ गया, 2000। गेटिंग इट? यस सर। जैसे ही पीटीआर में 2000 आ गया, मैंने देखा, तो पीटीआर बोले तो अभी पीटीआर किसको पॉइंट करेगा, इसको, क्योंकि पीटीआर में क्या है 2000। सो पीटीआर किसको पॉइंट करेगा, विच मेमोरी लोकेशन, 2000 वाले मेमोरी लोकेशन को।
जो PTR अभी पहले नोड को पॉइंट कर रहा था अभी वो दूसरे नोड को पॉइंट करेगा। Yes. गेटिंग इट? दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू, क्योंकि अभी जो भी नया नोड बनेगा फिर से मैंने क्या किया, फिर से मैंने सेम फंक्शन कॉल किया यहाँ पे। अब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट, दिस स्टेटमेंट। फिर क्या आएगा, फिर से मैंने क्या पास किया उसको, PTR एंड 3 डेटा, राइट। Yes, sir. तो जैसे ही मैंने ये फंक्शन कॉल किया, सो दिस इज हाउ दिस स्टेटमेंट, इस तरीके से ये लिंक हो जाएगा। ये जैसे ही लिंक हो जाएगा तो मेरी लिंक लिस्ट इस तरीके से बनी। Yes, sir. ये लिंक लिस्ट के बाद इफ दिस नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कॉल्ड, तो PTR और 3, दैट मींस व्हाट इज कॉल्ड हियर, PTR इज इक्वल टू एड एट एंड में, PTR में क्या है अभी 2000 3। 3. अंडरस्टूड? सो ये गया उसी फंक्शन में, किस फंक्शन में, एड एट द एंड में। तो यहाँ पे क्या आया, PTR 2000, 3. 2000 3। तो ये देखो टेम्प नाम का एक फंक्शन फिर से क्रिएट हुआ यहाँ पे। तो सपोज टेम्प एक पॉइंटर है, उसके लिए एक मेमोरी एलोकेट हुई, कितनी नोड के लिए लगती उतनी मेमोरी। मैंने उसका अज्यूम किया कि सपोज 3000 वाला मेमोरी, 3000 इज द एड्रेस ऑफ दैट नोड, तो उसके लिए आ गया टेम्प। अभी ये वाला टेम्प नहीं रहेगा, राइट, Yes, sir. नया टेम्प आ गया। सो टेम्प का एड्रेस है सपोज 3000, इसकी वजह से वो उसको पॉइंट कर रहा है। तो टेम्प का डेटा इसमें क्या आ गया, 3। 3. गेटिंग इट? और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी यहाँ पे PTR यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अंडरस्टूड? ये टेम्प की जगह पे अभी PTR आ जाएगा, राइट, Yes, sir. क्योंकि PTR में 2000 आ गया है। तो ये 3 आ गया और इसका जो लिंक पार्ट है वो मैंने बना दिया नल। जैसे ही मैंने इसको नल बना दिया, व्हाट विल हैपन, अब इस PTR का लिंक जो है, जो अभी नल है, उसमें क्या आना चाहिए, टेम्प 3000। Yes, sir. तो यहाँ पे आ जाएगा 3000। जैसे ही यहाँ पे 3000 आ जाएगा, ये वाला इसको कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। और इसने क्या रिटर्न किया, टेम्प। वो टेम्प किसमें कॉपी हो जाएगा, PTR में। अभी PTR जो यहाँ पॉइंट कर रहा था, अभी PTR यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि PTR में आ गया 3000। इस तरीके से PTR जो है वो लास्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट के लास्ट वाले नोड को पॉइंट करते रहेगा। जैसे ही कोई नया नोड आएगा, मैंने टेम्प पॉइंटर से मैं नया नोड बनाऊंगा और उसको उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। गेटिंग इट? Yes, sir. है ना? अब मैं इस तरीके से मैं कितने भी नोड कनेक्ट कर सकता हूं। गेटिंग इट? Yes, sir. सो दिस वुड बी द इजीएस्ट वे। ऐड एट द एंड करना हमेशा बहुत इजी होता है। ऐड एट द स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, सिर्फ आपको हेड को फिर मूव कराना पड़ेगा। जो भी नया टेम बनेगा ना, वो टेम को हेड से पॉइंट कराना। गेटिंग इट? अभी PTR को हटा रहे अपन, PTR का लिंक इज इक्वल टू टेम्प है। फिर क्या करना पड़ेगा, टेम इज इक्वल टू हेड करना पड़ेगा। गेटिंग इट? सो दैट वो आगे पॉइंट हो जाएगा। मतलब हेड विल बी, अगर नया नोड अब में हेड के पहले ऐड करना पड़ेगा ना, ऐड एट द बिगिनिंग अगर ऐसा करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, एक टेम्प नाम का बनाया मैंने, टेम्प नाम का जैसे ही बन गया, मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इसके आगे सपोज यहाँ पे टेम्प बन गया है, उसको कौन पॉइंट कर रहा है, टेम्प। मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले टेम्प का लिंक, 2 स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या, टेम्प का लिंक इज इक्वल टू हेड। तो टेम्प का लिंक हेड यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। गेटिंग इट? Yes, sir. और फिर क्या करना पड़ेगा, हेड को बढ़ा दो, हेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्प। मतलब टेम्प में जो भी वैल्यू होगी वो हेड में आ जाएगी। तो हेड जो है वो यहाँ पे पॉइंट करेगा पहले वाले नोड को, एज इट इज चलते रहेगा। तो मेरे को आगे से अटैच करो नोड, ऐड एट द बिगिनिंग करो या फिर ऐड एट द एंड करो, डजंट मैटर, मैं कहीं पे भी ऐड कर सकता हूँ। यस और नो? Yes, sir. चलो, वेरी गुड। इन दिस फैशन वी कैन क्रिएट द नोड। नाउ वी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। You read this question and then we try to solve this.
पहले क्वेश्चन समझो। दो मार्क का क्वेश्चन है, सो डेफिनेटली एकदम सिंपल तो आएगा नहीं। यहाँ पे बहुत सारा अजम्पशन करना पड़ेगा आपको कि लिस्ट इज ऑलरेडी देयर, राइट। अब उस लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए हम लोगों ने फंक्शन लिखा, तो यू जस्ट अज्यूम कि 3 नोड का या फिर 4 नोड का एक लिस्ट आप अज्यूम कर लो कि ये ऑलरेडी थी, फिर आपको उसको चेंज करना है। अब चेंज क्या करना है, व्हाट यू डू, इस प्रॉब्लम में क्या है, द फॉलोइंग सी फंक्शन टेक्स अ सिंगली लिंक लिस्ट एज अ इनपुट आर्गुमेंट। मतलब ऑलरेडी लिंक लिस्ट बनी हुई है, उसको उसने इनपुट लिया हुआ है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, उस लिस्ट को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे मॉडिफाई कर रहा है, बाय मूविंग द लास्ट एलिमेंट टू द फ्रंट ऑफ द लिस्ट। जो लास्ट में एलिमेंट है उसको उठा के वो पहले कर दे रहा है। गेटिंग इट? यस सर। और ये क्या, ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न्स द मॉडिफाइड लिस्ट। इसका आउटपुट क्या है कि वो लिस्ट जो है वो मॉडिफाइड लिस्ट होनी चाहिए, कि लास्ट में जो एलिमेंट था एग्जिस्टिंग लिस्ट के वो फ्रंट में आ गया। व्हाट इट इज शोन कि उन्होंने उसके लिए कुछ कोड लिखा हुआ है, बट सम पार्ट ऑफ द कोड इज मिसिंग, मतलब ब्लैंक छोड़ा है। यहाँ पे ये जो ब्लैंक लाइन लिखी है यहाँ पे, वी नीड टू राइट डाउन सम कोड। उस ये जो उस क्या कोड रहेगा, वो 4 लाइंस यहाँ पे लिखी हुई है। बट बिफोर दैट वी मस्ट नो कि ये जो एग्जिस्टिंग कोड है वो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है फिलहाल, कि क्या किया इसने। यस और नो? यस सर। तो क्या करेंगे हम, बताओ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे एक एग्जिस्टिंग लिस्ट, जिसमें ऐसा करेंगे कि ये मेरा 10 है, ये मेरा 20 है, ये मेरा 30 है। सपोज 4 नोड ले लो आप, ज्यादा लंबा भी नहीं बनाना है। ये मेरा 40 है। सो दिस इज माई नल। और इसका एड्रेस ले लो, सपोज 1000 है। इसका एड्रेस ले लो, ये 2000 है। इसका एड्रेस ले लो 3000 है। इसका एड्रेस ले लो 4000। यहाँ पे क्या रहेगा फिर, 2000। यहाँ पे क्या रहेगा, 3000। यहाँ पे क्या रहेगा, 4000। अगर है तो इस तरीके से लिंक है। गेटिंग इट? यस सर। और हेड नाम का पॉइंटर है, हेड में क्या है, 1000। तभी तो वो पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। यस सर। चलो, फिर हम लोग यहाँ पे आए और फंक्शन लिखा मूव टू फ्रंट। दिस इज द फंक्शन। एंड उसको क्या पास किया, हेड। तो हेड हमारे पास है जिसका कंटेंट है 1000, मतलब यहाँ पे उसने 1000 पास किया। फिर उसने क्या किया, दे हैव क्रिएटेड 2 पॉइंटर्स। क्या क्या पॉइंटर क्रिएट किया, एक p नाम का पॉइंटर और एक q नाम का पॉइंटर। गेटिंग इट? यस सर। नाउ इफ दिस लिस्ट इज देयर, तो हेड इज नॉट इक्वल टू नल। हेड नल है क्या, अभी नहीं। हेड में क्या है, 1000। फिर उसने चेक किया हेड का नेक्स्ट नल है क्या, हेड का नेक्स्ट भी नल नहीं है, राइट। दैट मींस व्हाट, ये इफ कंडीशन फॉल्स। यस सर। ये मेरे को बताइए, इफ कंडीशन ट्रू कब होती, जब नल आएगा तो। जब लिंक लिस्ट ही नहीं बनी होती। लिंक लिस्ट बनी ही नहीं है तो नल रिटर्न करता। या फिर एक ही नोड उसमें है, हेड का नेक्स्ट अगर नल है तो एक ही नोड बना होगा, तो हेड का नेक्स्ट जो पार्ट है वो नल होता। यस सर। तो अभी ये दोनों केस नहीं है, तो दोनों केस नहीं है तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। फिर क्या किया मैंने, क्यू में क्या रखा, नल। गेटिंग इट? क्यू में क्या आया, व्हाट इज द क्यू, किसको पॉइंट कर रहा है, किसी को भी नहीं, नल इज देयर। यस। यस सर। पी किसको पॉइंट कर रहे हैं, व्हाट इज पी, पी इज इक्वल टू हेड, मतलब हेड में जो है वो पी में आ गया। तो हेड में क्या है 1000, तो पी में भी क्या है 1000। इसका मतलब पी किसको पॉइंट कर रहा है, पहले वाले नोड को।
Yes, sir. Now this is the scenario before this while loop. Yes, sir. फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने चेक किया P का नेक्स्ट नल है क्या, चेक करो P का नेक्स्ट क्या है 2000, इसका मतलब क्या, P का नेक्स्ट नल नहीं है, नल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, Q इज इक्वल टू व्हाट, P, P मतलब Q 1000. कहां, Q में क्या आ जाएगा, जो P 1000. में है वो 1000, इसका मतलब Q भी कहां पॉइंट कर रहा है, पहले वाले नोड को। Yes, sir. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, P इज इक्वल टू P नेक्स्ट, मतलब P में क्या आ जाएगा, जो P का नेक्स्ट है वो, P का नेक्स्ट क्या है 2000, तो P में क्या आ जाएगा 2000, Yes, sir. तो P कहां पे पॉइंट करेगा यहाँ पे, बिकॉज P में क्या है 2000 नाउ। Yes, sir. फिर से चेक करेगा P का नेक्स्ट नल है क्या, नाउ टेल मी, ये P जो है ये नोड, इसका नेक्स्ट नल है क्या, No, sir. नहीं है, नहीं है तो कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो Q में क्या आ जाएगा P, मतलब Q में 2000. क्या आ जाएगा 2000, तो यहाँ पे Q इसको ना पॉइंट करते अभी किसको पॉइंट करेगा यहाँ पे, क्योंकि Q में क्या है 2000, 2000. गेटिंग इट, सिंपल है। Yes, sir. फिर से P इज इक्वल टू P नेक्स्ट, मतलब P में क्या आ जाएगा P नेक्स्ट, P नेक्स्ट क्या है 3000, तो P में क्या आ गया 3000, तो P यहां से हटेगा किसको पॉइंट करेगा 3000 वाले को, तो P में क्या आ गया 3000। Yes, sir. फिर P नेक्स्ट नल है क्या, देखो अभी यहाँ इसको P पॉइंट कर रहा है इस नोड को, इसका नेक्स्ट नल है क्या, No, sir. नहीं है, नहीं है तो कंडीशन ट्रू, फिर क्या कर रहा हूं मैं, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू P, मतलब Q जहां पॉइंट कर रहा है वहां पे P को पॉइंट करा दो, तो Q यहां से हटेगा, Q में भी क्या आ जाएगा 3000, so that this Q is also pointing to this node। Yes, sir. फिर P इज इक्वल टू P नेक्स्ट, ये P यहां से हटेगा और P किसको पॉइंट करेगा P नेक्स्ट, P नेक्स्ट क्या है 4000, 4000 वाले नोड को P पॉइंट करेगा, क्योंकि P में क्या है अभी 4000, अंडरस्टूड। Yes, sir. और चेक करेगा अभी P नेक्स्ट नल है क्या, P किसको पॉइंट करेगा 4000 वाले नोड को, 4000 वाले नोड का नेक्स्ट नल है क्या, Yes, sir. यस, अगर नल है तो व्हाइल लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया, Break. ब्रेक हो गया और व्हाइल लूप के बाहर आ गया। अभी मुझे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं सो दैट ये 40 वाला नोड जो है वो आगे आ जाएगा, मुझे मेरा मॉडिफाइड लिस्ट कैसा मिलना चाहिए, मेरे मॉडिफाइड लिस्ट में क्या आना चाहिए, ये 40 आगे जिसको पॉइंट करना चाहिए हेड, क्योंकि ये मेरा पहला नोड बनेगा, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद दिस 20 और उसके बाद ये 30, करेक्ट है, Yes, sir. ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और इस 30 का जो नेक्स्ट है वो क्या चाहिए मेरे को, नल, Yes, sir. ये वाला लिस्ट मुझे बनाना है। अभी सिनेरियो क्या है, P जो है वो लास्ट वाले एग्जिस्टिंग लिस्ट के लास्ट, दिस इज माय एग्जिस्टिंग लिस्ट, एग्जिस्टिंग लिस्ट के लास्ट वाले नोड को कौन पॉइंट कर रहा है P, और सेकंड लास्ट वाले नोड को कौन पॉइंट कर रहा है Q, अंडरस्टूड। Yes, sir. अभी मुझे क्या बनाना है, सेकंड लास्ट वाला जो नोड है उसको लास्ट वाला बनाना है, और जो लास्ट वाला नोड है उसको फर्स्ट वाला बनाना है, यस और नो। Yes, sir. तो व्हाट डू आई डू, क्या क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ अभी, यू नो दैट हाउ टू लिंक द नोड्स, मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, P is equal to head. P इज इक्वल टू हेड, तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा लिखा, सपोज यहाँ पे आप बोल रहे हो ना P इज इक्वल टू हेड, तो हेड यहां से उठ के यहाँ पे आ जाएगा,
फिर मैं ये वाले नोड का जो रेफरेंस है वो खत्म हो जाएगा, उसको कौन पॉइंट कर रहा हो पता ही नहीं चलेगा। है ना? अरे हाँ कि नहीं? यस सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले मैं क्या करूं, ओके नाउ लिसन हियर, मुझे क्या करना है, इसको जो है पहले ये वाला लिंक हटा दूंगा। ओके। सो दैट ये लिंक हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू का जो लिंक है उसको नल बनाना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा बनाया, क्यू का जो लिंक है इज इक्वल टू नल, तो व्हाट विल हैपन, ये बन जाएगा नल। गेटिंग इट? तो ये वाला लिंक हट गया। यस सर। फिर मैं क्या करूंगा, इसका जो ये जो नोड है इसको पहला बनाना है मेरे को, तो इसके लिंक में इसका जो लिंक पार्ट है उसमें क्या आना चाहिए, 1000। यस सर। है ना? क्योंकि ये 40 को पहला बनाना है मेरे को, तो 40 के नेक्स्ट में क्या चाहिए, 1000, बिकॉज 1000 इज द एड्रेस ऑफ दिस नोड। दिस इज 1000, दिस इज 2000 एंड दिस इज 3000 एंड दिस इज 4000। 4000 किस में है फिलहाल, पी में। गेटिंग इट? यस सर। फॉर नेक्स्ट क्या लिखूंगा मैं, बताओ। नेक्स्ट आई राइट डाउन हियर, इसके बाद क्या लिखूं, इस P का लिंक इज इक्वल टू हेड, राइट? लिंक के बजाय यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट यूज किया तो हम भी नेक्स्ट यूज करेंगे, राइट? P का नेक्स्ट और Q का नेक्स्ट। तो P का नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट है अगर मैंने इसको बना दिया हेड, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1000। तो देखो यहाँ पे आ गया 1000, सो दैट दिस विल पॉइंट टू दिस नोड। यस सर। और फिर अभी कौन सा पहला नोड बना, जहां पे P पॉइंट कर रहा है वो पहला नोड है, तो पहले नोड को तो हमेशा किसने पॉइंट करना चाहिए, हेड ने। यस सर। तो हेड में अभी क्या चाहिए, पहले नोड का एड्रेस क्या है, 4000, तो हेड में क्या आना चाहिए, 4000। तो हेड में 4000 कैसे आएगा, हेड इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, P। पी। अंडरस्टूड? तो हेड यस इज सर। इक्वल टू P किया, तो P में जो 4000 था वो हेड में आ गया, तो हेड इज नाउ पॉइंटिंग टू दिस 40। डन? यस सर। This is how I have modified the list. So which option is correct? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों? इसने Q को नल बनाया, मैंने Q को नल बनाया, क्या Q के नेक्स्ट को नल बनाना। हाँ तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, व्हाट इज द स्टेप, इसने क्या पहला स्टेटमेंट क्या लिखा, हेड को पहले ही P बना दिया, राइट? तो हेड यहां से हटा और यहाँ पे पॉइंट करने लग गया। अभी बताओ हेड यहाँ पे अगर आ गया, फिर इसने क्या किया, P का नेक्स्ट इज इक्वल टू Q, सो P के नेक्स्ट में Q आएगा क्या अभी, राइट? इसने क्या किया, P भी वहां पे पॉइंट कर रहा है, हेड भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, P का नेक्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, Q। ये वाला स्टेटमेंट लिखा है क्या मैंने यहाँ पे कहीं, नो सर। नो। सो व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखो क्या है, Q नेक्स्ट इज इक्वल टू नल,
तो मैंने लिखा q next is equal to null. Then p next is equal to head. P next is equal to head is my second statement, and my third statement is what? Head is equal to p. So this would be the sequence. Yes, sir. So what is the correct option? Correct option is option D. Yes, sir. Understood भाई ओंकार? Yes, sir. है ना? हे बघ याच्यामध्ये थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड होतं. लिंक लिस्ट आहे, पण एकदा तुला लिंकेज कळालं ना की कुठून कुठे कसं शिफ्ट करायचं, सो इट वुड बी व्हेरी इझी फॉर यू. तू सगळ्यात अरे पेक्षा सिंपल तुला लिंक लिस्ट वाटेल. Yes. Done. So now we'll see one more problem which was asked in your GATE 2008. See that the following C function takes a singly linked list of integer as a parameter and rearrange the element of the list. So एक function है जिसने क्या किया, जो लिस्ट दी हुई थी उसको उसने उसका रीअरेंजमेंट किया. अब कैसा रीअरेंजमेंट किया that we will see. So what it says that the given order of the linked list is like this: 1 2 3 4 5 6 7. ये मेरा लिस्ट का ऑर्डर था, ये वाले नंबर्स थे. This is the data part of my all the nodes. That means what? Total 7 nodes are there. Okay, and this node is as an input to this new function. और वो नया जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, उसको इस एलिमेंट को रीअरेंज कर रहा है. अलग अलग तरीके से उसने उसका अरेंजमेंट बिगाड़ दिया. अब क्या कैसा बिगाड़ा, बिगाड़ने के बाद उसका अरेंजमेंट कैसा आया, उन्होंने 4 ऑप्शन दिए यहाँ पे. अंडरस्टूड? Yes, sir. तो वो फंक्शन है ये वाला. तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, पहले तो मैं ये कितने नोड है मेरे, 7 नोड, ये मैं बना लेता हूं. 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नोड्स. पहले नोड का डेटा इज 1 2 3 4 5 6 and 7. Done. And Yes, the sir. address मैं लिख देता हूँ. This is 1000, इसका एड्रेस is 2000, इसका एड्रेस is 3000, इसका एड्रेस is 4000, इसका एड्रेस है 5000, इसका 6000 और इसका 7000. और ये क्या है? null. Understood? और these links are connected with each other in this fashion. ये मेरी existing list थी. So as you know, हमेशा क्या पास करते थे हम, पहले नोड का एड्रेस. अब पहले नोड का एड्रेस किसमें है, कौन से पॉइंटर में? लिस्ट. यहाँ पे हेड ना यूज करते, उन्होंने लिस्ट यूज किया. हम भी बोलेंगे भाई लिस्ट नाम का पॉइंटर है विच इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड. तो फर्स्ट नोड का एड्रेस इज 1000, तो लिस्ट में डेटा क्या है? 1000. दिस इज द एग्जिस्टिंग थिंग. Yes, sir. So what it says that कि they are again using 2 pointers of type struct node. तो मैं भी ले लेता हूं एक p नाम का पॉइंटर और एक q नाम का पॉइंटर. Yes, sir. और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये. इफ नॉट लिस्ट, मतलब ये लिस्ट अभी नल है क्या? No, sir. नो. या फिर लिस्ट का नेक्स्ट नल है क्या? No, sir. नो. अगर ऐसा है तो ये बाहर आ जाता था. इसका मतलब यहाँ पे क्या चाहिए? 0. नॉट 0 मतलब 1. यहाँ पे क्या चाहिए था? 0. नॉट 0 मतलब 1. दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती तो मैं बाहर आ गया रहता. तो ना तो ये कंडीशन ट्रू है ना ये कंडीशन ट्रू है, दोनों के दोनों फॉल्स है. Yes, sir. है ना? तो ये कभी ट्रू हो ही नहीं सकती.
फिर मैं आया यहाँ पे आने के बाद देखो क्या किया इसने, P इज इक्वल टू व्हाट, लिस्ट, मतलब लिस्ट जहां पॉइंट कर रहा है वहां पे P पॉइंट कर रहा है, यस। Yes, sir. और Q कहां पे पॉइंट कर रहा है, लिस्ट के नेक्स्ट List को, के next. लिस्ट का नेक्स्ट क्या है 2000, तो Q कहां पे पॉइंट करेगा इसको, Sir, अंडरस्टूड। list का next 2000 है ना? हाँ, तो ये 2000 वाले नोड को पॉइंट करेगा, Yes, sir. है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पे अभी डेटा लिखा नहीं, क्योंकि ये लिस्ट का नेक्स्ट क्या होता था, ये वाला डेटा 2000 विच इज द एड्रेस ऑफ न्यू नोड, तो वो 2000 क्यू में आ गया, तो क्यू किसको पॉइंट करेगा, ये वाले नोड को, अंडरस्टूड। Yes, sir. अब चेक कर क्यू नल है क्या, क्योंकि नल जब रहेगा तो ही जीरो वैल्यू आएगी। नाउ क्यू इज नॉट नल बिकॉज क्यू इज हैविंग 2000, Yes, sir. तो any value that I am keeping here, any non-zero value will be considered as a true condition. Yes, sir. So that means while is true when q is not null. Yes, sir. So see here what I am doing, I am using one temporary variable, एक temp नाम का variable मैंने लिखा है यहाँ पे, और ये temp जो है ये normal variable, pointer variable नहीं, right? इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम p की वैल्यू ले रहे हैं, p की वैल्यू कौन सी, p का डेटा 1, तो temp में डाल दिया 1, right, with the help of this statement. I hope you're cleared. Yes, sir. ये जो है ना, ये स्टेटमेंट की वजह से क्या आ जाएगा, टेम्प में क्या आ जाएगा, p की वैल्यू, Yes, sir. और ये क्या बोलता है, p के वैल्यू में अभी क्या क्या जाएगा, q का वैल्यू, सो q का वैल्यू क्या है 2, वो कहां चला जाएगा, p के वैल्यू में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, Yes, sir. और फिर क्या बोलता, जो टेम्प में है वो कहां चला जाएगा, q के वैल्यू में, Yes, sir. टेम्प में क्या है 1, वो कहां 1. चला जाएगा, q के वैल्यू में, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, Yes, sir. अंडरस्टूड। फिर p किसको पॉइंट कर रहा है, देखो, Q के next. तो q का नेक्स्ट कौन है, 3000. 3000, तो p कहां पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे, ये वाला नोड डिस्कनेक्ट हो गया, Yes. है ना। अभी p इसको पॉइंट कर रहा है, सॉरी q सेकंड वाले को पॉइंट कर रहा है, p जो है थर्ड वाले को पॉइंट कर रहा है, अंडरस्टूड, कहां तक, ये वाले स्टेटमेंट तक। अब देखो यहाँ पे अभी q किसको पॉइंट करेगा, q इज इक्वल टू व्हाट, तो ये वाला एक कंडीशन है, ये वाला एक कंडीशन क्या है, देखो कि ये टर्शरी कंडीशन है ना, वो वाला था मेरा कंडीशन, इफ यहाँ पे रहेगी कंडीशन, इफ दिस कंडीशन इज, ऐसा क्वेश्चन मार्क दिखा, अगर यहाँ पे दी हुई कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कोलन के बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कोलन के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, राइट। ट्रू है तो ये वाली कंडीशन, फॉल्स है तो ये वाली कंडीशन, अंडरस्टूड। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है, ये जो सिर्फ p दिया हुआ है वो क्या है, वो मेरी कंडीशन, वो क्या कंडीशन है कि ये जीरो है कि नॉन जीरो है, अगर ये नॉन जीरो है तो कंडीशन ट्रू है, अंडरस्टूड। Yes, sir. तो p का कंटेंट क्या है 3000, इसका मतलब क्या है, p की कंडीशन क्या है, ट्रू है, ये वाली जो कंडीशन लिखी हुई है p वाली, ये कंडीशन क्या है, True. ट्रू है। अगर ट्रू है तो p इज इक्वल टू व्हाट, मतलब ये क्या एग्जीक्यूट होगा, p नेक्स्ट, राइट, ये वाला कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कब होगा, जब फॉल्स रहेगा। Yes, sir.
तो Q को कौन सी वैल्यू गई? P नेक्स्ट, 4000. है ना? तो Yes. Q किसको पॉइंट कर रहे हैं अभी? इस नोड को, P नेक्स्ट वाले को. अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. फिर से सेम थिंग, फिर से क्या हो रहा है देखो, while Q is what 4000, इसका मतलब दिस इज अ नॉन जीरो वैल्यू. नॉन जीरो वैल्यू है तो कंडीशन ट्रू है. कंडीशन ट्रू है तो फिर से वही काम क्या कर रहा है, टेम में क्या आ गया, P की वैल्यू टेम में क्या आ गया अभी 3. Yes, sir. और P वैल्यू में क्या आ गया, Q की वैल्यू थी 4, वो आ गई 4. P में, तो दिस वैल्यू इज 4. Yes, sir. और जो टेम में थी वो कहां चली गई, Q वैल्यू में, तो यहां आ गया 3. Yes, sir. गेटिंग इट? फिर P कहां चला गया आगे, P आ गया यहाँ पे, P इज इक्वल टू Q डॉट नेक्स्ट, Q एरो नेक्स्ट. Yes, sir. और फिर से ये चेक करेगा P नल है क्या, नहीं है, P में अभी 5000 है, इसका मतलब कंडीशन क्या है मेरी, ट्रू है, तो Q इज इक्वल टू व्हाट, P नेक्स्ट. तो Q यहां से हटेगा, P के नेक्स्ट में जाके Q पॉइंट करेगा. Yes, sir. डन ना? फिर से ये विद द हेल्प ऑफ दिस 3 स्टेटमेंट, फिर से मेरे Q की कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि Q में क्या है 6000 है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है. तो ये स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 से क्या हो रहा है, इनकी वैल्यू स्वैप हो रही है. Yes, sir. है ना? 6 यहाँ पे आ गया और 5 यहाँ पे आ गया. Yes, sir. और जैसे ये 3 स्टेटमेंट खत्म हुई, Q कहां पे चला गया, Q डॉट नेक्स्ट पे, तो P यहां से हटा और यहां पे आ गया. नाउ दिस इज P. Yes, sir. तो टेल मी, अभी भी P की कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? P में क्या है, अभी भी 7000 है, इसका मतलब ट्रू है. Yes, sir. अगर ट्रू है तो Q में क्या जाएगा, P डॉट नेक्स्ट, P एरो नेक्स्ट. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q. P का नेक्स्ट में क्या है, Null. नल है, तो Q में क्या गया, नल. जैसे ही Q में नल गया, फिर से while कंडीशन चेक हुई, अभी while Q, मतलब Q में क्या है, जीरो, नल है, 0. तो कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स हुई, False. फॉल्स हो गई, तो ये while लूप ब्रेक हो गया. while लूप ब्रेक हो गया तो अभी चेक करो कि आपका जो लिस्ट था वो कैसा हो गया. पहला क्या है उसमें, 2, फिर 1, फिर 4, 4. फिर 3. 3, फिर 6 और फिर 5 एंड देन 7. 7 को Yes. स्वैप नहीं किया क्योंकि उसके बाद कुछ था नहीं. अगर 8 एलिमेंट होते मेरे पास तो 7 और 8 भी स्वैप हो जाता. Yes, sir. नाउ दिस वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ माय लिस्ट. रीअरेंज हो गए मेरे नंबर्स. Yes, sir. सो टेल मी विच ऑप्शन इज ट्रू नाउ. Option B. ऑप्शन बी. डन ओंकार. नाउ इट इज सफिशिएंट टू लर्न अबाउट द लिंक लिस्ट. Yes, sir. मतलब इस प्रकार से लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस आ सकते हैं. दिस इज व्हाट आई हैव जस्ट टेकन द वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस so that we can include all types of questions which were asked in your exams based on the linked list, right? Yes, sir. Chalo. Now this is all about the linked list. Now we start with the new topic called as a stack. This is my topic. Stack will, I'll quickly brief you what is the stack, what are the various operations we need to do, and how to perform the operation, push and pop operation, right? And then we see the problems or the questions which were asked on this topic called as a stack in your GATE exams. Yes? Yes, sir.
So I know that you have already know what is the stack and how it works. Still, I'll just brush up the things कि कैसा कैसा stack था, क्या था, किस तरीके से work होगा, कौन कौन से operations होते हैं, so that आपको भी थोड़ा सा refresh हो जाएगा कि how the stack works, right? Yes, sir. Chalo. So this is, we'll just introduce you what is the stack. Okay. So this is a definition of the stack. So you can visualize the stack, and I know that a stack is what? A stack is a linear data structure in which insertion and deletions are allowed only at the end, that is the top of the stack. जो भी insert और delete करना है मेरे को top of the stack ही मैं करता हूँ. So you can imagine this is a stack of books and stack of points here. So see that, can you tell me, can you take out the physics book from this stack? Yes, sir. Yes. Can you tell me, can you take out a chemistry book from this stack without moving the physics book? No, sir. Why not? क्यों नहीं निकाल सकते? मैं साइड से नहीं निकाल सकता क्या केमिस्ट्री का बुक? No, sir. क्यों? Only one end open होता है. हाँ, लेकिन वो कब? जब मुझे स्टैक को विजुअलाइज करना है वो टाइम पे. बट इफ आई एम सेइंग दैट दिस इज अ स्टैक ऑफ बुक, आई कैन टेक आउट केमिस्ट्री बुक विदाउट मूविंग इट, विदाउट मूविंग द फिजिक्स बुक. But when you want to visualize this stack, so you have to visualize in such a way that objects are placed inside a glass jar. Now there is no sideway access. Yes, sir. है ना? अभी आप नहीं निकाल सकते, पहले आप निकाल सकते थे, बट साइडवे एक्सेस नहीं है, बिकॉज दीज आर द ऑब्जेक्ट्स जो बुक स्टैक ऑफ बुक्स है, दे आर केप्ट इन अ ग्लास जार. The stack of points hai, they are kept in a glass jar, and that glass jar is closed from bottom and only open from the top. Now you cannot move any object or the object which are present in between. Only the object which is present at the top of the stack, only that object can be removed first. Understood? Yes, sir. So this is how we can use the function. कौन कौन से function हम लोग इसमें use करते हैं? We can use a push function. Push function क्या करता है? It is used to add the data or insert the data onto the stack. Yes, sir. So if we perform this primary operation, that is push, और push के बाद हमको कौन सा data push करना है वो भी हमको pass on करना होता है. Yes. So उसके साथ data कौन सा देना है, उस push function के साथ वो data का नाम भी मुझे देना पड़ेगा. Then only I can perform. If I execute this, जो data पहले बाहर था अभी वो stack में आ गया, right? Yes, yes. Pop के साथ argument में कोई data दिया है क्या मैंने? नहीं. Whatever the data is present at the top of the stack, that data will be removed. That data will be deleted from the stack, and that data is the last inserted data. Yes, sir. जो भी last वाला inserted data होगा, that data will be removed. जैसे मैंने pop को execute किया, तो जो data अंदर था stack में अभी बाहर आ गया, right? Because that was the only data present in the stack. So that is why that data is removed from the stack and the stack is empty now. So what is the secondary stack operation? Primary stack operation मेरे दो थे, push and pop. अभी secondary stack operation मेरे क्या क्या है बताओ? Top. तो अगर ये इसके लिए अगर मैंने कोई फंक्शन लिखा टॉप में, तो ये क्या रिटर्न करेगा? It will return the last inserted element without removing it. क्योंकि रिमूव कौन करेगा? रिमूव करने का काम किसका है? पॉप का. Pop. लेकिन मुझे सिर्फ पता करना है कि कौन सा एलिमेंट एट द टॉप है, तो मैं क्या करूंगा? आई जस्ट आस्क कि व्हाट इज द एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट एट द टॉप. तो ये फंक्शन कॉल किया, तो दिस फंक्शन विल रिटर्न मी द एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. So now if I execute this top function, what it will return? It will return 3. Yes.
right? Because 3 is present at the top of the stack. Now, if I use the function called as isEmpty क्या करेगा? isEmpty is true. It will return true because it's a Boolean function. हाँ या ना में जवाब देगा, right? True or Yes, false sir. में जवाब देगा. So what it returns? Either it returns true or false. When it returns true, if the stack is empty. Yes, sir. Else it will return false. अगर stack में कोई data है तो is empty क्या हो जाएगा? False. Stack is not empty, right? Because some data is present in the stack. Then the some secondary operation is size. अगर size पता करना है, so what it does, it will give you the number of element present in the stack. So right now, how many elements are present in the stack? 3 elements. So what is the output of this function? 3. It will return the value which is number of elements are present in the stack. Getting it? Yes, sir. The next is what? Same. जब जैसा is empty था वैसा हम लोग क्या करेंगे अभी? Is full. ये कब? ये this is also a Boolean function. What it does? Okay, either it returns a true or false. When it returns true, when the stack is full. Yes, sir. अगर stack full नहीं है, if there are some elements, मतलब some space is left in the stack, then what we do? We return false. Yes, sir. So see that these are the commands, list of the commands I need to execute on the stack. And initially, if you assume your stack is empty, so if I execute this function, what will happen? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1. 1, दूसरा पुश ऑपरेशन किया तो 1 के ऊपर क्या आ जाएगा? 2. 2, तीसरा पुश ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा? 3. 3. इफ आई परफॉर्म पॉप ऑपरेशन तो ये चला जाएगा और Yes. टॉप किसको पॉइंट करेगा? 2 को, बिकॉज टॉप इज द पॉइंटर व्हिच इज पॉइंटिंग टू द स्टैक टॉप एलिमेंट. Yes, sir. राइट. नाउ अगर मैं अभी चेक करूं इज फुल, तो स्टैक का साइज मुझे डिसाइड करना पड़ेगा. अगर स्टैक का साइज अगर 3 है, सो नाउ टेल मी आफ्टर परफॉर्मिंग अ पॉप ऑपरेशन इज फुल क्या देगा? ट्रू देगा कि फॉल्स देगा? False. False, because right now only 2 elements are present in the stack and the size of the stack is 3. So that is why there is some space left in the stack. So that is why stack is not full. So is full? False. Getting it? Yes, sir. So now we'll see the outline of the operation on the stack. That is, we are performing 2 operation, push and pop operation, and we try to implement both the operation in C program. Done? Yes, sir. So see that, as I don't want to, if I want to implement a stack, we can implement the stack by using array and the linked list both, right? But right now we are learning how to implement the stack by using array, and then we'll see how to implement the stack by using a linked list, right? Yes, sir. So see that we just assume that this is my stack and stack is implemented by using array, इसलिए मैंने इस stack को नाम दिया stack underscore array. Yes, sir. Right, and we have just assumed कि stack का size कितना है मेरा? Size of the stack is say 6. So that means what? At the most I can insert 6 element into the stack. और open end कौन सा किया है? ये वाला open end. And this end is closed. That means what? जो भी पहला atom आएगा, it will occupy this position. Next जो atom आया इसके ऊपर मैं यहाँ पे रखूंगा. Next जो element आएगा उसको मैं यहाँ पे रखूंगा. That means what? What I am doing, I am inserting the element at the end. हाँ या ना? Yes, sir. है ना? So जैसे ही
चौथा आइटम यहाँ आ जाएगा, पांचवा यहाँ पे आ जाएगा, छठवां यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं सातवें को पुश करने जाऊं तो वो पुश नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट विल एक्सीड द लिमिट ऑफ द स्टैक। यस और नो? Yes, sir. अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो दिस एलिमेंट विल बी डिलीटेड फर्स्ट, Yes, sir. because this is the recently added element, because my stack is what? LIFO structure, last in first out structure. Yes, sir. Now, so what we do, तो जो भी हमको इंसर्शन एंड डिलीशन करना था, दैट वुड बी परफॉर्म एट द एंड। इस एंड से इंसर्शन भी इसी एंड से हो रहा है, डिलीशन भी इसी एंड से हो रहा है, because this is how I just wanted to visualize this array is working like a stack. एंड स्टैक का स्ट्रक्चर कैसा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला। तो एरे को इस तरीके से मैं इंप्लीमेंट करूंगा कि वो स्टैक के जैसा बिहेव करे। अंडरस्टूड? Yes, sir. एंड इसके लिए मैं क्या करूंगा? आई यूज वन वेरिएबल कॉल्ड एज अ टॉप नाम का एक वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे, विच विल कीप द ट्रैक ऑफ लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट और द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द एरे। सो जो भी जैसे ही एलिमेंट यहाँ आएगा तो टॉप इसको पॉइंट करेगा। पहला एलिमेंट आया, दूसरा एलिमेंट आया तो टॉप यहां से हटेगा, टॉप इसको पॉइंट करेगा। यस और नो? Yes, sir. I hope you understood this. This is what, if you want to implement a stack by using array, तो ये सारी आइडिया आपको चाहिए पहले, then and then only you can go for the coding. Yes, sir. Chalo. So now, if my stack is empty, so no element is present in the stack. Yes or no? Yes, sir. So मैंने एक assume किया था before I designing this stack by using an array कि भाई टॉप नाम का एक वेरिएबल मैं रखूंगा जो एलिमेंट रिसेंटली इंसर्ट हुआ है उसको पॉइंट करेगा। Yes, sir. मतलब उसका इंडेक्स उसमें रहेगा, क्योंकि अरे इज वर्किंग ऑन द इंडेक्स। सो टेल मी, अरे का पहला इंडेक्स क्या है? 0। Yes, sir. और अभी कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि कोई एलिमेंट उसमें है नहीं, अगर एक भी एलिमेंट उसमें आ गया रहता तो टॉप उसको पॉइंट किया रहता, टॉप का वैल्यू 0 हो गया रहता। Yes, sir. तो इसीलिए when the stack is empty, what I am doing, I am initializing my top variable is equal to -1. So this is my initialization. When the stack is empty, और top को क्या करेंगे हम? -1 से initialize करें, so that when the top का content is equal to -1, which will give me an idea कि now stack is empty. Understood? Yes, sir. Fine. So I am now, this is the scenario, and now I am performing a push operation and I am pushing the data 1 into the stack. Understood? So how the stack operation is performed, that is the sequence of the operation that you need to remember. जब भी मैं push operation perform कर रहा हूं तो सबसे पहले क्या होगा? Top will be incremented by 1. Understood? Yes, sir. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टॉप प्लस प्लस, सो टॉप इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, सो टॉप का कंटेंट क्या हो जाएगा बताओ? जो -1 था अभी क्या हो गया? 0। फिर हम जो नया एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, नया एलिमेंट क्या है? 1। तो हम क्या करेंगे, जो एरे का नाम है, एरे का नाम क्या है? स्टैक अंडरस्कोर एरे। उसके कौन से इंडेक्स पे? टॉप वाले इंडेक्स पे क्या ऐड करेंगे? 1। Yes, sir. So this is the new element 1 that I want to add at which position? Stack underscore array 0. of top, और top का कंटेंट क्या है? 0। मतलब stack underscore array arr 0 पे हम क्या कर रहे हैं? 1 ऐड कर रहे हैं। तो stack underscore array के 1 पे 0 लोकेशन पे क्या आ जाएगा? 1। और टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये यहां से हटके दिस 0. वैल्यू विल बी 0। Yes. I hope it is clear.
Yes, sir. So tell me next time if I want to perform again push operation, suppose push 10 है, ये operation मैंने performed किया, तो क्या हो जाएगा? Again top will be incremented by 1, top plus plus, top जो 0 था अभी top 1 हो गया, और उस पोजीशन पे मैंने क्या ऐड किया? 10. तो s of top मतलब s Yes, stack of 1. underscore arr के 1 पे क्या आ जाएगा? 10. Yes, sir. तो सी दैट टॉप का कंटेंट क्या है? 1. ये वाला जो इंडेक्स है, this index is loaded into the top, so that top is always pointing to the element which is recently added into the stack. Yes, sir. Very good. So we can move on now. So if you want to perform this series of operation, so tell me what will happen. So यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 आ गया तो टॉप में 1 आ गया. So जैसे ही मेरे को और एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, टॉप विल बी 2, और उस पोजीशन पे मैंने नेक्स्ट एलिमेंट रखा तो पुश 3 आ गया. Yes, sir. फिर पुश 5 करना है तो फिर से टॉप इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, टॉप इज 3, और उस पोजीशन पे मैंने क्या रख दिया? 5. 5. फिर और एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया तो पहले टॉप इंक्रीमेंट होगा, टॉप का वैल्यू इज 4, तो उस पोजीशन पे फोर्थ वाली इंडेक्स पे मैं क्या रखूंगा? 10. 10. फिर से एक ऑपरेशन किया पुश 11, तो अगेन द टॉप इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड दिस 11 विल बी पुश्ड देयर. Yes, sir. मतलब क्या है? जब भी मैं पुश ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा? बताओ सीक्वेंस क्या होगा? पहले टॉप इंक्रीमेंट होगा Top. और उस पोजीशन पे मैं नया एलिमेंट इंसर्ट करूंगा. अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ टेल मी, उसके बाद अगर मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया पुश 12, स्टैक का साइज तो पूरा हो गया. जैसे Yes, मैं sir. पुश 12 के लिए जाऊंगा तो टॉप क्या करेगा? पहले टॉप विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, टॉप का वैल्यू विल बी 6. लेकिन sir. यहाँ पे इस एरे में 6 वाले इंडेक्स है ही नहीं. Yes, sir. यस और नो? जैसे ही टॉप का वैल्यू 6 हो जाएगा, I cannot perform the push operation because there is not enough space in the stack. This state is called as overflow and element can't be pushed. That means what? क्या है मेरा? stack is 4. overflow or stack is full, right? So no element can be pushed. 12 cannot be pushed. This message can be displayed. Yes, sir. फिर मैं जाऊंगा पॉप ऑपरेशन में. पॉप ऑपरेशन देखो कैसा करेंगे अभी. नाउ दिस इज द सिनेरियो. टॉप में क्या है? 5, और उस फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? 11. तो सी दैट कि हाउ टू परफॉर्म पॉप ऑपरेशन. उसका सीक्वेंसिंग क्या है? जहां पे टॉप पॉइंट कर रहा है वो वाला एलिमेंट पहले डिलीट होगा, फिर टॉप 1 से डिक्रीमेंट होगा. उल्टा, पहले इसमें पुश में क्या था? पहला इंक्रीमेंट फिर पुश. पॉप में क्या है? पहला डिलीट फिर पॉप को डिक्रीमेंट. हाँ, yes, sir. Understood? So this Yes. 11 will be deleted from the stack and then top which is decremented by 1, top का value is 4. तो top यहाँ पे point करेगा. Understood? Yes, sir. तो actually देखा जाए तो जो 11 है ये delete नहीं हुआ. This 11 is still present in the array, but it should be visualized in such a way that this 11 is not present. क्योंकि सबसे topmost element पे जो भी होगा उसको कौन पॉइंट कर रहा है? टॉप. अभी टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? 10 को, विच इंडिकेट्स कि अभी सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? 10. सर 11 तो डिलीट होएगा ना? एरे में नहीं होता डिलीट. मैं लिंक लिस्ट से उसको डिलीट कर सकता हूं, बट एरे में दिस 11 विल स्टिल प्रेजेंट एट द पोजीशन 5. बट मैं उसको ऐसा दिखाने की कोशिश करूंगा कि अभी अगर वो टॉप पे होता या फिर स्टैक में होता तो टॉप उसको पॉइंट करता ना. Yes or no? अभी टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? इस 10 को.
तो ये ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगा कि अभी स्टैक में 11 है ही नहीं, स्टैक में जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो 10 है, क्योंकि टॉप उसको पॉइंट कर रहा है, क्योंकि टॉप का काम क्या है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको पॉइंट करना। यस सर। फिर इसके बाद अगर मैंने पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया, सपोज पुश मैंने किया 50, व्हाट विल हैपन, टॉप पहले एक से इंक्रीमेंट होगा और इस जगह पे 50 आ जाएगा, 11 हट के 50 आ जाएगा, यस और नो? यस सर। है ना? तो दैट मीन्स व्हाट, देयर इज अ स्पेस लेफ्ट फॉर परफॉर्मिंग अ पुश ऑपरेशन, बट that position is still there, that element is still there. यस सर। अगर आपको उसको हटाना है तो आप उसको जीरो कर सकते हो, बट इट इज ऑफ नो यूज ना, उसको जीरो करे क्या, कोई भी रहे क्या, नया एलिमेंट अगर मैंने डाला तो ओवरराइट हो ही जाएगा। यस सर। तो सी दैट टॉप, पहले तो एलिमेंट को हम डिलीट करेंगे और फिर टॉप इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। वहां पे डिलीट करने के बाद उसने वो एलिमेंट हटा दिया, बट एलिमेंट वो हटता नहीं है, 11 वहां पे रहेगा ही रहेगा, लेकिन टॉप एक से डिक्रीमेंट हो गया तो टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, इस 10 को, राइट? यस सर। So now we'll see that how to implement a stack. तो अभी हम लोग लिखेंगे functions push और pop के लिए, understood? यस सर। So what we do now, in future we'll have a functions for the different operation including push and pop. Push and pop के लिए we are writing a function now. तो function requires, every function requires this stack underscore array, ये array हर एक को लगेगा, है ना? पुश को भी लगेगा because push is also using this array, pop is also using this array. यस सर। What is my plan or strategy? कि almost every function this array, so what I'll do, I'll declare this stack underscore array as a global variable, यस सर। so that मुझे हर फंक्शन को उसको पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने उसको ग्लोबल डिक्लेयर कर लिया तो मैं उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। यस सर। अगर मैंने उसको ग्लोबल नहीं डिक्लेयर किया होता तो मुझे क्या करना पड़ता था, एवरी टाइम आई नीड टू पास दैट एरे एज एन इनपुट टू एवरी फंक्शन, पुश को भी भेजना पड़ता था और पॉप को भी भेजना पड़ता था। यस सर। तो हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेंगी, हम उस अरे को क्या करेंगे, विल डिक्लेयर इट एज अ ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, देखो मेन के ऊपर डिक्लेयर किया इंट स्टैक अंडरस्कोर ARR और उसकी साइज दे दी 4। इसका मतलब क्या है, वो 4 एलिमेंट को रख सकता है, दैट साइज कैन बी चेंज्ड, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। यस फाइन, सो दिस इज अ ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ स्टैक ARR। फिर मैंने क्या कर दिया कि भाई यहाँ पे मैं उसको मैक्स बना दूंगा, मतलब एक डिफाइन नाम का कांस्टेंट डेफिनेशन है ना मैक्रोस, तो मैक्स में जहां जहां लिखूंगा दैट मैक्स वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय 4, यस सर। है ना? तो मुझे अगर मेरी स्टैक की साइज अगर मुझे चेंज करनी पड़ी तो कोड में जाके जहां जहां मैंने 4 लिखा है वो सारा चेंज करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट मैं इस 4 को रिप्लेस कर दूंगा मैक्स से। अगर मुझे भाई आगे जाके स्टैक का साइज मतलब चेंज करना है तो सिर्फ मैं इस मैक्रो को वैल्यू चेंज करूंगा, सो ऑटोमेटिकली मेरा जहां जहां मैंने मैक्स लिखा हुआ है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, यस सर। है ना? सो I'll use this strategy. So here I am writing this max. Understood? यस सर। फिर मैंने क्या किया, सो सिमिलरली टॉप वेरिएबल भी ऐसी चीज है जो कि हर एक फंक्शन को काम में आने वाली चीज है, क्योंकि टॉप कहां पे पॉइंट कर रहा है उसके बेसिस पे आई एम गोइंग टू टेक द डिसीजन, है ना? यस पुश सर। में क्या हो रहा था कि पहले इंक्रीमेंट। टॉप को हम इंक्रीमेंट कर रहे थे और फिर डेटा ऐड कर रहे थे, मतलब पुश को भी टॉप की जरूरत है, और पॉप में क्या कर रहे थे, पहले एलिमेंट डिलीट कर रहे थे फिर टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहे थे, यस और नो? यस सर। मतलब पॉप को भी टॉप की जरूरत है।
तो हम क्या करेंगे, ये दोनों फंक्शन को टॉप भेजने से बेटर है कि हम उस टॉप को भी वी कैन डिक्लेयर इट अ ग्लोबल वैल्यू. Yes. सो सी दैट मैंने क्या किया, दिस इज माय इनिशियलाइजेशन. मेन के ऊपर स्टैक को भी डिक्लेयर कर दिया और टॉप को भी डिक्लेयर कर दिया -1. Yes. फिर आई एम हियर कि मैं अभी पुश ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा. अब से कौन सा डेटा पुश करना है वही मेरे लिए बाकी है, क्योंकि ये दोनों चीजें हैं, ये एरे और ये टॉप वेरिएबल, ये मेरे लिए एक्सेसिबल है कहीं से भी. Yes. तो व्हेन आई कॉल दिस फंक्शन push1, तो आई विल रिकॉल कि मुझे क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि व्हेनेवर आई एम परफॉर्मिंग अ पुश फंक्शन, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहले मुझे क्या करना है, टॉप को इंक्रीमेंट करना है, और फिर उस इंडेक्स पे, टॉप वाले इंडेक्स पे क्या रखना है, उस वैल्यू को स्टोर करना है. Yes. Getting it? Yes. So I just need to recall this. So when I go for the push operation, see that what I am doing. तो पहला पुश 1 मैंने किया, तो पुश 1 किया तो मेरे को पता है क्या करना पड़ता था, टॉप को पहले इंक्रीमेंट करो, बिकॉज टॉप वाज व्हाट, -1 था. तो टॉप इनिशियली इट वाज -1, राइट. तो मैं यहाँ पे Yes. लिख देता हूँ, ये कुछ लिखूंगा ही नहीं. टॉप क्या था, -1. फिर टॉप को क्या किया, एक ऐड किया तो ये बना 0, और उस Yes. 0th एलिमेंट पे मैंने क्या किया, 1 को ऐड कर दिया तो ये आ गया. Yes. फिर से दूसरा फंक्शन कॉल हुआ push2. फिर से मैंने क्या किया, टॉप को 1 से इंक्रीमेंट किया तो टॉप बिकम्स 1. सो उस 1th वाले इंडेक्स पे मैंने क्या ऐड कर दिया, वो डेटा, दैट इज 2. वैसे ही मैंने 3 ऐड किया, 4 ऐड किया, राइट. तो लास्ट में क्या रहा, टॉप में क्या आ गया, 3. Yes. अंडरस्टूड ना. सो नाउ जो मेरा मैक्स साइज था वो तो पहुंच गया ना. नाउ कैन आई परफॉर्म पुश ऑपरेशन? No, sir. No. Right. So what we do, if we perform one more push operation, we cannot do it. Yes, sir. Why? Because now we need to wait, because stack is full now. So what we do before performing every push operation or each push operation, I need to first check that कि stack full है कि नहीं है. If stack is not full, then only I can call this function. Understood? Yes, sir. Then only I can add this data into my stack. Getting it? Yes, sir. तो मैं क्या करूंगा, अभी मेरा जैसे ही मैं पुश मैंने कोई कॉल किया तो मैं क्या चेक करूंगा, what is the status of stack, what is the content of stack. If stack top is equal to max -1, now last में देखो टॉप की वैल्यू क्या थी, 3. 4 एलिमेंट ऑलरेडी आ गए थे यहाँ पे. Yes, sir. और मैक्स की वैल्यू क्या थी, 4. नाउ टेल मी दैट इफ आई वांट टू परफॉर्म दिस पुश 5, तो यहाँ पे आया 5, डेटा 5, और ये पुश ऑपरेशन में आया, और पहले इसने चेक किया, क्या चेक किया, टॉप इज इक्वल टू मैक्स -1 है क्या. सो मैक्स इज 4, 4 -1, और टॉप का वैल्यू 3 था. दोनों मैच कर रहा है. Yes, sir. अगर दोनों मैच कर रहा है तो क्या क्या मैसेज देगा, ये स्टैक इज ओवरफ्लो, एंड ये फंक्शन से रिटर्न आ जाए. It will not execute these two statements. Yes, sir. Understood? Yes, sir. मतलब पुश करने से पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, स्टैक कहीं फुल तो नहीं है. अगर स्टैक फुल है तो मैं कोई पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं वापस मेरे पुश से मैं वापस मेरे मेन प्रोग्राम में आ जाऊंगा. Yes, sir. करेक्ट है? Yes, sir. So now see that this is the code that I have written, the same code. तो सी दैट मेरा मैक्स का वैल्यू क्या था, 4, और ये दोनों को मैंने डिक्लेयर किया था ग्लोबल, राइट. ये पुश फंक्शन मैंने यूज किया,
और यहाँ पे मैंने हर बार पुश करने से पहले मैंने चेक किया कि टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1 है क्या। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स देन ओनली आई कैन एग्जीक्यूट दिस, टॉप को 1 से बढ़ाए और उस पोजीशन पे डेटा को रखे। Yes. सर नो, तो ये Yes. इसके लिए चलेगा, इसके लिए चलेगा, इसके लिए चलेगा, इसके लिए चलेगा। बट जब ये पुश 5 वाला एग्जीक्यूट होगा तो क्या आउटपुट आएगा बताओ? स्टैक ओवरफ्लो। Overflow. तो सी दैट क्या आउटपुट आया? स्टैक ओवरफ्लो। दिस इज द आउटपुट दैट आई एम गेटिंग। Yes. चलो, now this is all about the push, but now we'll see about how the pop operation will happen और pop function कैसा काम करेगा। So you can read this, how to delete the element at the index 3। तो यहाँ का index 3 का element अगर delete कर, because pop करना है, तो pop करने के लिए मैंने जैसा पहले बताया था, we cannot simply remove the array element। array का element हम डायरेक्ट उसको रिमूव नहीं कर सकते। जैसे भले ही हम लोग पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स 3 का डेटा पॉप नहीं होगा। ओनली थिंग इज दैट आई एम डिक्रीमेंटिंग दिस टॉप वेरिएबल बाय 1 सो दैट टॉप का कंटेंट विल बी 2। ऐसा महसूस होगा कि टॉप अभी किसको पॉइंट कर रहा है? यहाँ पे। गेटिंग इट? Yes, sir. तो हम इसको रिमूव नहीं करते, बट स्टिल वी कैन गिव द यूजर एन इल्यूजन। मतलब वी कैन क्रिएट ए इल्यूजन इन सच ए वे दैट कि अरे एलिमेंट क्या हो गया है? डिलीट हो गया है। कैसे? बाय डिक्रीमेंटिंग द टॉप वेरिएबल। सो डेफिनेटली टॉप वेरिएबल 1 से डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। दिस वैल्यू विल बी 2। व्हाई? बिकॉज as per our fundamental we know that top variable is always keep a track of the topmost element of the stack, Yes, sir. राइट? अगर टॉप इसको पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब अभी स्टैक में टॉप मोस्ट एलिमेंट 3 है, 4 है ही नहीं, भले ही 4 वहां पे उस पोजीशन पे प्रेजेंट है। गेटिंग इट? Yes, sir. So what it says that if the top element, the top variable is decremented by 1, then the user will perceive that the topmost element is deleted। मतलब उसका परसेप्शन ऐसा हो जाएगा यूजर का कि that element is not there, right? Yes, sir. Now we'll see that how to perform a pop operation। Now we'll write the pop function which is capable of deleting the topmost element of the stack, that is stack underscore arr, and it will return the deleted element। क्या रिटर्न करेगा? जो एलिमेंट उसने डिलीट किया, दैट कौन सा एलिमेंट उसने डिलीट किया वो रिटर्न कर देगा, राइट? दैट इज द हाउ द पॉप फंक्शन वर्क्स। Yes, sir. Now see that कि this is the scenario कि भाई मैंने पहले तो 4 मेरा एरे था, स्टैक एरे जिसका साइज 4 था, और मैंने 4 पुश ऑपरेशन ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूं। इसका मतलब मेरे स्टैक में 4 एलिमेंट ऑलरेडी है, स्टैक का कंटेंट अभी 3 है, और अभी मैं पॉप करने जा रहा हूं। गेटिंग इट? Yes, sir. तो पहले ये क्या बोलता है? पहले आप उसको डिलीट कर दो, मतलब स्टैक ARR टॉप पे जो वैल्यू थी, मतलब स्टैक अंडरस्कोर ARR 3 पे जो वैल्यू थी वो एक दूसरे एक वेरिएबल में मैंने ले ली ताकि मुझे पता चले कि कौन सा वैल्यू डिलीट हुआ है। Yes, sir. देन व्हाट आई विल डू, व्हाट इज माय नेक्स्ट टास्क? मैं डिक्रीमेंट करूंगा टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1, और ये रिटर्न क्या करेगा? डिलीटेड वैल्यू। ये यहाँ पे क्या रिटर्न होगा? 4, और वो 4 वैल्यू कहां पे स्टोर होगी? इस डेटा में। Yes, sir. गेटिंग इट? सो दैट द यूजर विल कम टू नो कि जो परफॉर्म हुआ है पॉप ऑपरेशन उसमें कौन सा वैल्यू डिलीट हुआ। सो इस डेटा को अगर मैंने प्रिंट किया तो पता चल जाएगा कि विच वैल्यू वाज डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। एंड एज आई नो स्टैक में 1 पहले आया था, फिर 2 पहले आया था, फिर 3 आया था, फिर 4 आया था, लास्ट में कौन आया था? 4। तो 4 हैज टू बी डिलीटेड। तो वो पता चल जाएगा कि ये स्टैक के जैसा एरे मेरा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस और नो।
Yes, sir. तो जस्ट लाइक अगर मैं फिर से पॉप करने गया तो क्या क्या पॉप हो जाएगा? 3 विल बी पॉप। Yes, sir. फिर और एक पॉप किया तो और एक पॉप हो जाएगा, 2 विल बी पॉप। फिर से Yes, sir. पॉप किया तो और एक दिस 1 इज देयर, दैट विल बी पॉप। इसके बाद और मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो क्या हो जाएगा? टॉप कुछ क्या हो नहीं जाएगा? होगा। टॉप का वैल्यू क्या हो जाएगा वो टाइम पे? -1, -1. है ना? और फिर मैं क्या कर रहा हूं? मैं फिर से पॉप फंक्शन कॉल कर रहा हूं। तो इज इट पॉसिबल टू परफॉर्म अ पॉप ऑपरेशन ऑन एम्प्टी स्टैक? No, sir. बिकॉज टॉप इज इक्वल टू -1। दैट इज द रीजन कि स्टैक में अभी एक भी एलिमेंट नहीं बचा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि पॉप करो। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त मैंने चेक करना था एवरी टाइम बिफोर आई ऐड द डेटा इनटू द स्टैक कि स्टैक फुल है कि नहीं है, क्योंकि फुल वाले स्टैक में मैं डेटा ऐड नहीं कर सकता। वैसे ही पॉप में खाली स्टैक में मैं पॉप नहीं कर सकता, डेटा डिलीट नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हेनेवर आई एम परफॉर्मिंग अ पॉप ऑपरेशन, फर्स्ट आई चेक कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ स्टैक टॉप। अगर टॉप का कंटेंट -1 नहीं है, इसका मतलब स्टैक में डेटा है, आप अभी पॉप कर सकते हो। Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो सी दैट that is why we need to check the condition of stack underflow. Stack underflow मतलब क्या है? Stack empty condition. Yes, sir. तो जैसे ही मैं पॉप फंक्शन के पास जाऊंगा, पहले क्या चेक करूंगा मैं कि व्हाट इज माय टॉप। if top is equal to -1, if this condition is true, what will happen? It will give Stack you under. the output what? Stack underflow, or I'll exit from the code. कोड से बाहर आ जाएंगे क्योंकि नीचे का कोई मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है। Yes, sir. अंडरस्टूड? So this is how I can visualize the thing. You see that? तो अभी क्या है कि मैंने कितने पुश किए? 1 2 3 4। सो दिस वुड बी द माय पुश ऑपरेशन। यहाँ पे मैंने पुश, पॉप और प्रिंट भी कर दिया, राइट? इस तरीके से मेरा स्टैक था, 4 एलिमेंट है, 1 पुश किया, 2 पुश किया, 3 पुश किया, 4 पुश किया। और कितना पॉप किया? 2 बार डेटा पॉप हुआ। तो पहला 4 पॉप हो गया, फिर 3 पॉप हो गया। यस और नो? Yes, और sir. अभी आई एम गिविंग द स्टेटस ऑफ दिस प्रिंट। तो स्टेटस क्या दिखना चाहिए? पहले क्या आना चाहिए? स्टैक टॉप पे क्या है? 2 और फिर 1। Yes, sir. तो पहले प्रिंट होना चाहिए 2 और फिर 1। तो यहाँ पे मैंने देखो कहां से प्रिंट करना शुरू किया? जहां पे टॉप पॉइंट कर रहा था। अगर ये स्टैक टॉप पे है तो ये पहले प्रिंट होना चाहिए 2। तो मैंने क्या किया? कहां से शुरू किया? फॉर लूप देखो, टॉप से, राइट? और उसको डिक्रीमेंट करते गया टॉप माइनस में। पहले टॉप वाला वैल्यू प्रिंट होगा, टॉप माइनस माइनस होगा। कब तक? जब तक टॉप 0 नहीं होता तब तक। सॉरी, -1 होता नहीं तब तक। और Yes, sir. उस एरे को मैं प्रिंट करते गया। नाउ सी दैट अगर मैं इस टाइप के 4 पुश ऑपरेशन, उसके बाद 2 पॉप ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया, अगर अभी मैं मेरे स्टैक को अगर मैं प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए? पहले 2 फिर 1। Yes, sir. तो सी दैट अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ओके 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 ओके, इसके ये किसके लिए एग्जीक्यूट हुआ था? ये 5 के लिए, है ना? क्योंकि मैंने, मेरा साइज जो था 4 ही था, मैंने 5 एलिमेंट उसमें पुश कर दिए, इसलिए स्टैक ओवरफ्लो आया था। यस? Yes, sir. Yeah. है ना? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? द आउटपुट शुड बी 2, 2, 1. 1, राइट? क्योंकि वो जो आउटपुट मैंने दिखाया है वो पुश 5 के बाद वाला आउटपुट था।
Yes, sir. ये वाला. So now ये रिपीट हो गया यहाँ पे. This is the repetitive thing. Now see that ये वाला कोड है. ये दो पॉप करने के बाद क्या आउटपुट आया देखो. 2 1. Yes. Done. Yes, sir. Now we start solving the question which was asked in your competitive exams. ये आप एक काम करो, you just read this question carefully and tell me that what you have understood from this question. ओंकार काही समजलं का? जे पण पॉप होणार एलिमेंट त्याची सिक्वेन्स आहे. हा, त्याची सिक्वेन्स सांगितली आहे त्यांनी. इफ द सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन इज लाईक दिस, म्हणजे अज्युम कर कि ये दिस इज योर स्टैक, वन एंड इज क्लोज्ड. सबसे पहले क्या किया आपने? वन को पुश किया, पुश. फिर टू को पुश किया. यस. फिर पॉप किया. 2 पॉप होगा. 2 पॉप होगा तो 2 बाहर निकला. यस सर. फिर पुश 1. फिर ये हट गया, फिर उसकी जगह क्या आया? पुश 1. 1 यहाँ पे आया, फिर पुश 2. यस 2 सर. यहाँ पे आ गया. यस सर. फिर क्या हुआ? पॉप पॉप पॉप. तो पहला पॉप जब हुआ तो क्या हुआ? 2 पॉप हो 2 गया, इसको मैं हटा देता हूँ. 1 1. फिर 1 पॉप हुआ, इसको भी हटा देता हूँ तो 1 आ गया. फिर से एक बार पॉप हुआ, ये 1 भी पॉप हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ. यस. राइट. देन व्हाट? क्या पुश हुआ? 2. 2. और क्या हुआ? उस 2 को भी पॉप किया, ये 2 भी हट गया तो 2 यहाँ पे आ गया. यस सर. राइट. So this is what? This is a sequence of popped out value. यस सर. Right. क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए. Option A is the correct answer. Done. यस सर. तो इस तरीके से the element will be popped out. 2 2 1 1 2. Right. यस सर. So this is the second question. So tell me, you execute it and tell me the answer.
सर ऑप्शन बी आएगा, स्टैक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्स। सर एक्सेलेंट। हम्म एक ही एलिमेंट ई रहता है लास्ट में। लास्ट में रहता है ना, तो इसका मतलब कहीं अंडरफ्लो नहीं है, कहीं ओवरफ्लो नहीं है, हाँ सर। तो मतलब स्टैक ऑपरेशन बराबर हो रहा है, स्मूथली सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो पा रहे हैं, यस है ना? सो यू डोंट नीड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, यू गॉट द आंसर। यस चलो, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर ये मेरा स्टैक है और इसमें साइज में बता देता हूँ पहले, 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट है, राइट? 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट आ सकते हैं। यस पहले क्या पुश किया? ए, फिर इसको भी पॉप कर दिया, फिर पुश किया बी, फिर पुश किया सी, फिर पॉप किया, फिर पुश किया डी, फिर पॉप किया, फिर पॉप किया और फिर पुश किया ई। दैट मीन्स व्हाट? नो अंडरफ्लो, नो ओवरफ्लो, स्टैक जो है वो स्मूथली परफॉर्म कर रही है। तो आई यस विल गिव दिस ऑप्शन बी हियर। सी दैट स्टैक में क्या बचा है? ई, बाकी सब यस पॉप हो गए थे। तो मतलब कैसे हो रहा है? स्टैक स्मूथ परफॉर्म हो रहा है। दिस इज द सॉल्यूशन। यस सर। So see this question. Which of the following permutation can be obtained in the same order using a stack, assuming that input is in the sequence of 5, 6, 7, 8, 9 in that order? अगर इनपुट सीक्वेंस इस तरीके से है तो मैं क्या करूं कि मैं इसमें से किस तरीके का ऑर्डर मुझे मिलेगा? कौन सा ऑर्डर? पॉप करने वाला। गेटिंग इट? सर क्या फिर से बताओ। क्वेश्चन ये है कि ये इनपुट सीक्वेंस दिया हुआ है और आपके पास एक खाली स्टैक दी हुई है। अब आप क्या करो कि कौन सा परम्यूटेशन ये चारों में से मुझे मिलेगा कि मैं वो स्टैक में एंट्री करने के बाद, अगर मैंने पहले 5 पुश किया, तो अगर बी ऑप्शन मेरे को चाहिए तो पहले मैं उसको पॉप कर दूंगा, फिर वो 5 मुझे मिल जाएगा। गेटिंग इट? यस सर। ना, इस तरीके से मुझे ये कॉम्बिनेशन चेक करने। तो टेल मी, तो पहले हम जाते हैं ए वाला कॉम्बिनेशन मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है ना? ओके सर। तो पहला मुझे क्या चाहिए? एलिमेंट 7। 7। तो पहले मैं क्या पुश करूंगा? 5। फिर क्या पुश करूंगा? 6। फिर क्या पुश करूंगा? 7। जैसे ही 7 टॉप पे आ जाएगा मैं उसको पॉप कर सकता, तो मुझे मिल गया 7। यस सर। फिर नेक्स्ट क्या चाहिए मेरे को? 8। तो 7 तक तो मैं पुश कर चुका हूँ, नेक्स्ट वाला एलिमेंट 8 ही था, मैं पहले उसको पुश करूंगा फिर उसको पॉप कर दूंगा, मुझे मिला 8। यस सर। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 9। 9। तो फिर मैं जो 9 बचा था एक, उस 9 को मैं क्या करूंगा? पुश कर दूंगा। यस सर। तो जैसे ही पुश किया मैंने पॉप कर दिया, सो 7 8 9 मिल गया। अभी यस सर। स्टैक के टॉप पे क्या है? 6। 6। तो जब भी मैं इसको पॉप करूंगा तो क्या आएगा? पहले 6। जैसे ही 6 आया मैंने बोला कि ये तो काम नहीं बन रहा मेरा, ये कॉम्बिनेशन तो मिलेगा नहीं। यस सर। यस और नो? तो यस सर। जैसे ही यहाँ पे आया मैं, तो मैंने सोचा कि नहीं दे, मेरा कॉम्बिनेशन नहीं है, आई विल गो फॉर द अनदर कॉम्बिनेशन। सो आई विल गो फॉर ऑप्शन बी नाउ। ऑप्शन बी के लिए जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई वांट कि आई नीड टू मेक स्टैक एम्प्टी एंड आई स्टार्ट पुशिंग द डेटा फ्रॉम द इनपुट सीक्वेंस। सो पहले क्या आएगा? 5। तो मैंने जैसे ही 5 रखा, तो दिस 5 मुझे पहला ही चाहिए था, तो पहले मैंने इसको पॉप कर दिया तो 5 मिल गया। यस सर। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए? 9।
9. 9 चाहिए तो मैं क्या करते गया, पुश करते गया जब तक 9 नहीं मिलता टॉप ऑफ द स्टैक पे। तो 6 पुश किया, फिर 7 पुश किया, फिर 8 पुश किया और फिर 9 पुश किया। Yes sir. फिर जैसे ही 9 टॉप पे आ गया तो मैंने इसको पॉप किया, तो 5 के बाद मुझे 9 मिला। Yes sir. तो 9 मिलने के बाद फिर मुझे क्या मिलना चाहिए, 6। लेकिन अभी 6 8. डायरेक्ट मिलेगा क्या, नहीं, मुझे पॉप Yes. करना पड़ेगा, तो 8 को ही पॉप करना पड़ेगा। Yes sir. इसका मतलब ये वाला सीक्वेंस भी नहीं मिलेगा, बी वाला भी Yes नहीं sir. मिलेगा, Yes sir. राइट। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन। तो पहले मैं देख लेता हूं डी एंड देन विल गो फॉर सी। ठीक है, डी में क्या चाहिए मेरे को, आई वांट द फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 9। 9. तो मैं क्या करूंगा, पहले 5 आया पुश कर दो, फिर 6 आया पुश कर दो, 7 आया पुश कर दो, 8 आया पुश कर दो, और जैसे ही 9 आया उसको भी पुश कर दिया। फिर 9 जैसे ही टॉप ऑफ द स्टैक आया मैंने उसको पॉप किया, 9 मिला। फिर नेक्स्ट Yes एलिमेंट sir. 8 आया, उसको भी पॉप किया, 8 मिल गया। नेक्स्ट एलिमेंट मुझे 7 चाहिए, टॉप ऑफ द एलिमेंट 7 है, उसको भी पॉप कर दिया, 7 मिला। Yes sir. नेक्स्ट एलिमेंट मुझे क्या चाहिए, 5, लेकिन 5. अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, 6, 6. तो ये नहीं मिला, तो दिस कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो रॉन्ग। Yes. तो बचा क्या, सी। आई कैन स्ट्रेट वे से दैट सी इज द आंसर, Yes sir. है ना। तो बिफोर दैट आई जस्ट चेक इट, क्या सी वाला मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आई जस्ट से मेरा दिस इज माय स्टैक व्हिच इज एम्प्टी राइट नाउ, आई एम स्टार्ट पुशिंग द डेटा ऑन टू द स्टैक। और पहला कौन सा चाहिए मेरे को, 7। जब तक स्टैक टॉप पे 7 नहीं आता चलो पुश करते रहो। पहले 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया। जैसे ही 7 आया मैंने पॉप किया, 7 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, 8। तो 8 तो स्टैक टॉप पे नहीं है, मैं पुश कर सकता हूँ क्योंकि देयर आर सम डेटा लेफ्ट। 8 को पुश किया और 8 ही चाहिए था, तो उस 8 को भी पॉप कर दिया, 8 मिला। फिर मेरे को 9 चाहिए, तो 9 तो स्टैक टॉप पे है नहीं, बट एक डेटा बचा हुआ है इनपुट में से, तो उसको मैंने पहले पुश किया, 9 को पुश किया, 9 ही चाहिए था, उसको पॉप कर दिया, 9 मिला। राइट, अभी तो इनपुट Yes sir. सीक्वेंस मेरी पूरी खत्म हो गई, अभी मुझे सिर्फ स्टैक के साथ ही डील करना पड़ेगा। स्टैक टॉप पे क्या है, 6, और मुझे नेक्स्ट एलिमेंट क्या चाहिए, 6, तो उसको पॉप किया। Yes sir. जैसे ये पॉप हो जाएगा टॉप इसको पॉइंट करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 5, इसको भी पॉप करेंगे, तो ये सीक्वेंस मुझे मिल गई। Yes sir. तो माय ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज सी। Yes. सर ये 1 मार्क्स के लिए होगा ना? ये डिपेंड है, अगर ये इसरो वाली एग्जाम में आया हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली, अगर उनके अगर क्वेश्चन सेम है ना, उनके क्वेश्चन के पैटर्न पे डिपेंड है कि हर क्वेश्चन के लिए अगर सेम मार्क्स अलॉटेड होगा तो वो 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, लेकिन गेट में अगर आया तो ये 1 मार्क के लिए आएगा, हाँ. है ना, बिकॉज द पैटर्न इज वेरी सिंपल, है ना, क्वेश्चन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लग रही दिमाग को। हाँ. So this is my option C is the correct answer. So you read this question. अभी क्या बोला है, नॉट पॉसिबल वाला, है ना। Yes sir. इसने क्या बोला है कि देयर इज अ स्टैक जिसका नाम है ए,
हैज एंट्रीज ए बी सी। तो कैसी एंट्री है? ए इज ऑन द टॉप, मतलब सी पहले आया, फिर बी और फिर ए। यस सर। और दूसरी स्टैक है मेरे पास स्टैक बी विच इज एम्प्टी। यस सर। तो एन एंट्री पॉप्ड आउट ऑफ द स्टैक ए, जो भी स्टैक ए में आई हुई है डेटा उसको पॉप कर सकते हैं। जो भी पॉप करेंगे हम लोग स्टैक ए से, उसको क्या करना है? दैट कैन बी प्रिंटेड इमीडिएटली। उसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूं और मैं उसको स्टैक बी में भी पुश कर सकता हूं। गेटिंग इट? यस सर। मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है, स्टैक ए से जो भी डेटा मैं निकालूंगा या तो मैं उसको प्रिंट करूं, नहीं तो मैं उसको स्टैक बी में पुश कर दूं। यस सर। और दूसरा क्या है? वॉट एवर द एंट्री विच इज पॉप्ड आउट फ्रॉम द स्टैक बी, अगर स्टैक बी से जो एलिमेंट पॉप होगा वो सिर्फ प्रिंट ही हो सकता है। गेटिंग इट? मैं उसको किसी स्टैक ए में वापस पुश नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? यस सर। सो इट सेज दैट कि कौन सा अरेंजमेंट यहाँ पे पॉसिबल है जो कि प्रिंट होगा। प्रिंट करना है आपको डेटा। गेटिंग इट? यस सर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले फर्स्ट we will create two stack. I'll just say this is my stack A और दूसरा जो है ये है मेरा stack B. Getting it? यस सर। और stack A की एंट्री किस तरीके से है? पहले CBA, C, फिर B और फिर A। अगर मैं इसके लिए जाऊं ऑप्शन ए के लिए, है ना, अभी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे कि क्या ऑप्शन आ सकता है, राइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, पॉसिबल है तो वो मेरा ऑप्शन नहीं होगा। क्या BAC को मैं प्रिंट कर सकता हूं? कैसे? अगर मुझे चाहिए ए को, अगर मैंने पॉप किया तो ए अगर मैंने प्रिंट किया तो पहले ए प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मेरे को ए नहीं चाहिए पहले। तो मैं क्या करूंगा? स्टैक ए से जो पॉप हुआ उसके बाद दो ऑप्शन है कि या तो प्रिंट करें नहीं तो स्टैक बी में पुश करें। यस और नो? यस सर। तो प्रिंट करना सही रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि ए प्रिंट होगा जो कि मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए पहले बी। तो अगर ये ऑप्शन पॉसिबल है कि नहीं वो चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा? उस ए को, सॉरी, उस ए को पुश कर दूंगा स्टैक बी में। करेक्ट है? यस सर। और फिर मेरे को स्टैक टॉप पे क्या आ जाएगा? B. बी। सो टेल मी व्हाट डू आई डू? इसको प्रिंट कर दूं? यस सर। यस, इसको पॉप करेंगे तो प्रिंट हो गया। यस सर। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? मेरे को नेक्स्ट क्या चाहिए? ए। A. तो वो टाइम में मैं स्टैक बी से पॉप करूंगा, क्योंकि स्टैक बी में स्टैक टॉप पे कौन है? ए। A. तो वही चाहिए था, मैं इसको पॉप करूंगा और प्रिंट कर दूंगा। फिर एक ही बचा स्टैक ए में, दैट इज स्टैक टॉप पे क्या है? बी सी। C. तो सी को पॉप करेंगे और प्रिंट कर देंगे BAC, विच इज पॉसिबल। तो दैट मीन्स व्हाट? ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। मेरे को क्या चाहिए? नॉट पॉसिबल। Yes sir. गेटिंग इट? Yes sir. So I'll go for the next option. That is, this is my stack A and this is my, I do have a empty stack, that is stack B. Stack A का कंटेंट क्या है? C, B and A. करेक्ट? अगर मेरे को ये वाला ऑप्शन चाहिए, सपोज BCA, तो सी दैट कैसा करेंगे? पहले B चाहिए तो मैं A को यहां से पॉप करूंगा और B में पुश कर दूंगा। Yes sir. फिर B स्टैक टॉप पे है तो इसको पॉप करूंगा और प्रिंट कर दूंगा। Print. तो B को मैंने प्रिंट कर दिया। फिर Yes क्या sir. है? C. C। तो स्टैक ए में प्रेजेंट है C एंड दैट इज अ स्टैक टॉप एलिमेंट। तो यहां से पॉप करेंगे, प्रिंट कर देंगे। फिर Yes sir. बचा A।
तो स्टैक बी में प्रेजेंट है ये, दैट इज ऑन स्टैक टॉप, तो ए को यहां से निकालेंगे और प्रिंट कर देंगे। ये भी पॉसिबल है, ये Yes, sir. पॉसिबल है, इसलिए ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, Yes, sir. राइट। सो व्हाट डू आई डू, आई विल गो फॉर नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के पास अगर मैं गया तो आई विल हैव अ 2 stacks, this is stack A and this is my stack B. stack B is empty, लेकिन stack A में क्या क्या है, C, CBA. CBA, और अभी मेरे को प्रिंट करना है, तो स्टैक ए से जो निकालेंगे वो स्टैक बी में भी डाल सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। Yes, तो sir. पहला क्या है, C. सी, तो सी जब तक नहीं आता तब तक मैं उसको प्रिंट नहीं कर सकता, तो इसको यहां से पॉप किया, Yes, यहाँ sir. पे पुश कर दिया, फिर बी आया, यहां से पॉप किया, यहाँ पे पुश कर दिया, Yes, sir. गेटिंग इट। फिर Yes, मैंने sir. क्या किया, स्टैक टॉप पे क्या गया, सी, तो उसको पहले प्रिंट कर दिया। Yes, sir. अब मैं स्टैक बी पे आऊंगा क्योंकि स्टैक ए तो पूरा एम्प्टी हो चुका है, Yes, sir. स्टैक बी में आया, तो स्टैक बी में स्टैक टॉप पे क्या प्रेजेंट है, B. बी। अगर मुझे पॉप करना, इससे यहां से अगर मैं जो भी मैं पॉप करूंगा उसको मुझे प्रिंट ही करना पड़ेगा, Yes, sir. तो यहां से अभी प्रिंट करने के लिए क्या ऑप्शन बचा मेरा, CBA, Yes, sir. जो कि ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. है नहीं, तो माय आंसर इज सी। Yes. डन, Yes, sir. सिंपल है, समझ में आ रहा है ना। स्टैक में जो आ रहा है, स्टैक में ज्यादा कुछ होता नहीं है ना, स्टैक में क्या रहेगा, पुश एंड पॉप ऑपरेशन। So that is why this is my option. Option C is the correct option. Yes, sir. So this is how we have almost we have seen all types of problem which is there in the 1 minute. I have not shared your attendance today. Let me share the attendance first. So that's it, Omkar, from my side. If you want to ask any question regarding this, you can ask. Stack memory क्या होती है, लिंक लिस्ट के बारे में we can discuss. Yes, sir. No doubt. No doubt, everything is cleared. Yes, sir. ना स्पीड परफेक्ट है, स्पीड में कोई प्रॉब्लम है, फास्ट है या स्लो है, ऐसा कुछ नहीं है, No, sir. Perfect. परफेक्ट है। Yes. So if everything is done, so this is from my side. I have done the linked list and the stack. So tomorrow what we do, we'll start with the new topic called as search, है ना। तो कल हम लोग लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च दोनों पढ़ेंगे, दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं यूनिवर्सिटी में, वो वाले क्वेश्चंस दैट वी विल सॉल्व। यूनिवर्सिटी में नहीं, गेट एग्जाम्स में, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछते हैं बाइनरी सर्च पे, दैट क्वेश्चन वी विल सी। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर, है ना। Yes, sir. चलो, तो shall I end this meeting? Yes, sir. Thank you. चलो, thank you, Omkar. We'll see you tomorrow, right? Yes, sir. चलो, bye bye. Bye. Bye.